Let's begin with breaking news that's coming in right now on the Uniform Civil Code. There's a fresh rift that's broken out in the opposition ranks, even as they're trying to put out a show of unity. After Kejriwal, after Uddhav Sena, now a Congress Mantri has come out to publicly back UCC. Himachal Minister Vikramaditya Singh has said that UCC will be backed, that we will support it when the time comes. He's gone on to say that the party, the Congress, will support UCC. Is he now speaking for the Congress? Is there a strategy that the party is following that this Himachal minister has now disclosed? Let's get you, in fact, that reaction in just a bit. But Manjeet Sehgal is joining us with more details on that. Manjeet, interesting reaction from a Congress leader. He's not just speaking for himself. He's saying that Congress very soon will support UCC. Yes, indeed, Akshita. Vikramaditya Singh, who holds the Public Works Department and Youth Affairs Department in Himachal Pradesh, has gone against the party lines and said that the Uniform Civil Code was in the interest of the nation and in the integrity as well. That will be supported as and when it comes. But secondly, he has also slammed the Bharatiya Janata Party for bringing this law at a time when the country is heading for Lok Sabha elections. He had also said that it should not be politicized, but has favored the Uniform Civil Code, saying that it was in the interest of the unity and integrity of the nation. Akshita. Okay, Manjeet Sehgal, thanks for getting us those details. Mr. Jairam Thakur, leader of opposition of Himachal Pradesh, is joining us on the phone line. Mr. Thakur, thank you for speaking to us here on India Today. Just hold on with us, sir. Let's play out for our viewers exactly what the Congress Mantri, what Vikramaditya Singh has said. यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा, मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है, जिसकी वजह से जो असली इश्यूज लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे ना रहकर पीछे हट जाते हैं, जो सही चीज नहीं है। So that's a reaction from Vikramaditya Singh. Joining us on the phone line is Mr. Jairam Thakur, leader of opposition, former chief minister of Himachal Pradesh. Thakur ji, आपको क्या कहना है? अब तक कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, सब बोल रहे थे कि यूसीसी कम्युनल है, डिवाइसिव है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह यही कह रहे हैं कि जब यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे हम सपोर्ट देंगे। देखिए, कांग्रेस जिस तरह से यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो तथ्य पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग इस पक्ष में है और अंतरात्मा की आवाज कहीं न कहीं तो निकलती है। और जो विक्रमादित्य सिंह जी ने जो बात कही है, मेरा ये मानना है कि अंतरात्मा की आवाज उनकी आई है और उनका, मुझे लगता है कि ऐसा उनका कहने का भाव है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस सारे विषय को लेकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये यूसीसी सबके लिए पूरे देश भर में जब लागू हो तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में है, ये समाज के हित में है और भारत को आगे ले जाने के लिए आज के दौर में ऐसी चीजों की जरूरत है। क्या आपको लगता है ठाकुर जी कि ये एक सिंबॉलिक स्टेप है और एक कमेंट है कि यही है कांग्रेस के एक्चुअल स्टैंड इस मुद्दे पर? देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से सारे विषय को लेकर के अपनी बात कर रही है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। अगर एक परिवार को एक कानून है तो दूसरे परिवार को दूसरा कानून देने का औचित्य कोई नहीं है। ये एक मूल मतलब एक सोच होनी चाहिए, मूल एक भाव है सारे इसका, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हर नागरिक को एक समान अधिकार होना चाहिए, इस बात की मांग तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ यूसीसी के मामले में नहीं, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष के लिए ये सोचने का विषय है कि विरोध की वजह क्या है, वो इस सारी चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहे और राजनीतिक वजह के सिवा कोई और वजह नहीं।